Lani ji. Thank you, Uh, Amit. to all the participants as well for joining us another session of Golden Charcha. So first of all, I would like to go to the our chairman sir, Vishnu sir. Can you please just give us the brief background and about the whole program and the things we do? First of all, thank you, Amit, for taking these initiatives to the rootest level of this Eastern India, because the objective is to identify different speakers from different places of the Eastern India, and you are doing very well. I am so happy with you. And thanks, Ghanshyam Kalani, who given some special time for us. The objective is that we should give the opportunity to each and every chartered accountant to the Eastern India, because this is your platform, this is your institute. I am here just to work for you. So welcome for that, and thank you, Prakash ji, for consenting that for the special address. So I am so happy to you, and Thank the you, sir. person like this can take the initiatives and can take the ERC ahead. Just wanted to say that we are very soon we are going to organize Golden Charcha, Golden Jubilee Conference on 21-22nd November in Biswa Bangla Convention Center. This is one of the biggest one, and it's an opportunity for all of us that we should cherish this moment togetherness. So we request for whoever you know, please publicize this in this particular event and be the part of it. Thank you so much, and the topic is very well selected. And thanks, Amit ji, for giving the opportunity. And now hand over back to you for the next proceedings. Thank you so much. Thank you so much, sir, for giving me the opportunity to host this such a prestigious program under the EIRC banner. And thank you so much for giving the opportunity throughout all the new speaker in the Eastern Zone, as well as recognizing the old chartered accountant in the form of a special addressee. And to begin with the session, let us welcome our special addressee of the day, CA Prakash Chandra Agarwal ji. Prakash Chandra Agarwal ji is a practicing chartered accountant from over 15 years of experience, and he will address the session for the day. So over to you, Prakash Chandra ji. Thank you, Amit ji. Hello. हाँ sir, you are audible, sir. Audible, na? Thank you, Amit ji. First of all, thank you, and a special thank you to our EIRC chairman, Sri Vishnu Tulsian ji, to give me the opportunity for this special program, Golden Charcha. And this Golden Charcha is started by the EIRC under the uh, by the Sri Vishnu Tulsianji. This is a very good started by him, and I see today's topic. I think today's topic is project financing. So project financing is a good topic, which is took by our chairman Sri Vishnu Tulsianji, and on this topic, CA Ghanshyam Kalaniji specially addressed to all the audience and participants. I am briefing some items about project financing. Project financing is a very good topic for us. Us means practicing chartered accountants. Earlier, we financing was the topic, financing and financing. What is the financing? And project financing, we have some myth that project financing means some project in infrastructure and like that, real estate work, that is the project only. But as the institute also issue the handbook on this project financing, uh, detailed in that, uh, what is project financing? Project means this may be a small trader or a big infrastructure or totally industry. So financing means not only the in the real estate business, it is also cover the manufacturing units or infrastructure projects and also the trading units as well. And we have the very large scope
in this project financing to cover the matter and our opportunities in this project financing. Like opportunity, we chartered accountant have more skills in this financing. Earlier, when I was in article period and some CC limit or term loan were asked by the banks, they were sometimes they were rejected the projected. Why? यार कि आपका अपना अमाउंट कहाँ है, आपका अपना अमाउंट कहाँ है, कि आप जो है कि टोटली बैंक के भरोसे आ रहे हैं. सो देयर शुड बी योर own fund in this project also, in this finance business. So I learned by around 20 years ago by a regional manager that a businessman should have 25% his own margin. How? 25% is own margin. How? कि उनका ये कहना था कि यदि आपका पैसा अपना नहीं लगा हुआ है बिजनेस में तो यू हैव नो इंटरेस्ट. सो हाउ द दिस मार्जिन मनी शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस और इंडस्ट्री, वी चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन द sum up to the business entrepreneur. So like we can see the how in project financing how a chartered accountant help the entrepreneur. We can see the we have all of us have seen the Mahabharat. What is the role of Vidur in that? In Mahabharat, Vidur had no specialization in the fighting, but he have some knowledge about the नीति, कि आपको कैसे राज करना है, कैसे क्या करना है, सारी नीति रहती थी. वो राजा को हेल्प करते थे कि आपको ये चीज करना है और ये चीज नहीं करना है. सो वी कैन हेल्प द एंटरप्रेनर एज अ विदुर, so that the entrepreneur can develop his business as well. So this project finance not only the infrastructure real estate, it is the overall manufacturing unit, infrastructure, or as well as trading. We chartered accountant can special role in this project finance scope, and we have more opportunities to develop our skills to the entrepreneur. Overall, all the matter will be delivered by the Kalani ji to all the audience. And thank you, Vishnu ji, to took this program as a subject project finance, because in this era, in this scenario, project financing is a very good topic to the businessmen, entrepreneurs, industrialists, because all have required the funds. Where is the fund? क्योंकि सबके पैसे तो जमा हो गए बैंक में, अब बैंक से पैसे लेने हैं, तो कैसे आएंगे पैसे बैंक से वापस बिजनेस में? तो ये हम चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बता सकते हैं. विष्णु जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस टॉपिक को इन्होंने चूज किया. और आईसीएआई जो है वो भी आपको प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए बहुत सारी सुविधाएं दे रही है कि कैसे कैसे आपको करना है. नॉट ओनली कि केवल फाइनेंस करवा देना, बैंक से कांटेक्ट करना, उसके बाद के और पहले के फाइनेंसिंग के पहले के जितने रोल हैं, कैसे कैसे फाइनेंस होगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, बाद में सर्टिफिकेशन करवाना है, फंडिंग कहाँ यूज हो रही है नहीं हो रही है, इसकी डिटेल आई थिंक कि कलानी जी इसके बारे में सारी डिटेल रोल एंड अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को बताएंगे. सो आई एम बाय दिस आई एम हैंड ओवर टू द अमित जी. थैंक यू Vishnu ji, Amit ji, and Kalani ji, and all our audience. Thank you, Amit ji.
Over Thank to you, you. sir, for this wonderful advocacy regarding the topic. Our speaker, Thank you, sir. program of EIRC, the Golden Chacha. So, without any further delay, I would like to welcome our speaker of the day, CA Ghanshyam Kalani ji. So today we'll be diving into a crucial area of project financing, a topic which is relevant for all the CAs, all the entrepreneur, as well as the basic salary holder as well. So to enlighten us on the topic, we are honored to have with us CA Ghanshyam Kalani ji. CA Ghanshyam is a chartered accountant with over a decade post-qualification experience. He is a practicing chartered accountant by profession. He specializes in project financing advisory. His expertise is built on a strong foundation of experience, including his time spent with various banker and NBFC members. Ghanshyam is also actively involved with ICI and also acted as a speaker on various forums as well. So without further any delay, let's welcome CA Ghanshyam Kalani ji to share his expertise insight on the topic project financing. Over to you, sir. Sir, the floor is yours. थैंक यू अमित जी। मैं पहले विष्णु जी का, ईआरसी का, मोहित जी का, सीए चंद्र प्रकाश जी अग्रवाल जी का सबका धन्यवाद देता हूं कि मेरे को इस लायक समझा गया कि मैं इस प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के ऊपर डिलीवर कर सकता हूं। कि मेरे को ये टॉपिक जब मेरे को बोला गया था तो ये टॉपिक बहुत वाइड है और 1 घंटा का टाइम दिया गया है। इसमें मैं जितना हो सकेगा उतना कवर करने की चेष्टा करूंगा, लेकिन कोई भी पॉइंट मिस अब हो गई हो तो मैं फिर उसको मेरे कांटेक्ट नंबर पर शेयर कर दूंगा, तो उसमें अपने कोई भी डिस्कशन फर्दर कर सकेंगे। Right, sir. मैं इसी के साथ में प्रोजेक्ट को चालू करता हूँ। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग ये क्या चीज है और क्यों रिक्वायरमेंट है? प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग ये कुछ भी नहीं है, ये जस्ट फाइनेंस का पैसे की जरूरत है बिजनेसमैन को टू स्टार्टअप ए इंडस्ट्रीज या टू एक्सपेंड ए इंडस्ट्रीज। ये सब तुम पैसा जब तक नहीं होगा आदमी के पास में, वो कहाँ से काम कर पाएगा? ये लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए है। बहुत जन प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग को लॉन्ग टर्म गोल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके करते हैं, लेकिन आज के डेट में डे टू डे एक्टिविटीज के लिए भी मेरे को फाइनेंस चाहिए। उसको हम लोग कैश क्रेडिट बोल सकते हैं, ओडी बोल सकते हैं, अदर नाम से भी बोल सकते हैं, लेकिन ये रिक्वायरमेंट है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर में जाने के लिए, प्रोजेक्ट क्या चीज है? प्रोजेक्ट इज नथिंग ए बिजनेस वेंचर। मैं कोई भी काम करने जा रहा हूं तो मेरे को बिजनेस वेंचर, मेरा कोई क्या बिजनेस है, उसके ऊपर क्या चीज है, बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मेरे को क्यों फाइनेंस करेगी? दिस इज द प्रोजेक्ट मीन्स ए बिजनेस वेंचर। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंसिंग? Financing is a process of providing a fund for business activity. In short, it is a borrowing money with a promise to repay that money with a interest over a period of time. मैं कोई से भी पैसा ले रहा हूँ, उसके लिए मेरे को कुछ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है कुछ पीरियड के टाइम के लिए। if मैं बैंक से टर्म लोन ले रहा हूँ, वो 2 साल, 4 साल, 10 साल के लिए जो भी टर्म एंड कंडीशन के ऊपर ले रहा हूँ, उसके लिए मेरे को इंटरेस्ट विथ प्रिंसिपल मेरे को बैंक को ऑन द टाइम ऑफ बेसिस और ऑन द टाइम ऑफ एग्रीमेंट मेरे को उस हिसाब से रीपे करना पड़ेगा। अब मेन टॉपिक पे आते हैं, व्हाट इज प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग? Financing based upon the project cash flow of the project rather than the balance sheet of the project sponsor. ये नया कंपनी के लिए कि मैं बैलेंस शीट के ऊपर या मैं क्या काम कर रहा हूँ उसके ऊपर नहीं जाके, मैं नया प्रोजेक्ट कोई भी लगाने जा रहा हूँ तो मेरा उस प्रोजेक्ट के ऊपर में क्या चीज है, किसके बेसिस पे है और मेरा उससे क्या कैश फ्लो आएगा, मैं उस चीज को रखने के लिए कहा जा रहा है। अब कौन कौन इसमें इन्वेस्टर होगा? हु? पहला तो मैं खुद ही होऊंगा स्पॉन्सर, मतलब जो बिजनेस कर रहे हैं, वी कैन कॉल एज इक्विटी इन्वेस्टर नोन एज ऑल्सो स्पॉन्सर्स। सेकेंडली, लीडिंग इंस्टीट्यूट्स होगा लाइक सिंडिकेट्स ऑफ बैंक, फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स एंड अदर्स। अब क्या चीज के लिए? हाउ? नॉन रिसोर्स लोन, secured loan by project assets paid up entirely for a project assets rather than from the sponsors assets. अब दो टाइप का होता है कि रिसोर्स मैं उसमें कुछ क्या एसेट्स दे रहा हूँ,
क्या मैं इसके मेरे पीछे में क्या बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को मैं दे रहा हूँ, उसके ऊपर मेरे ऊपर रिक्वायरमेंट रहता है। और यूजुअली ये लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है, 10 to 20 years। इफ कैश क्रेडिट लेते हैं या ओडी लेते हैं तो ये जनरली 1 year ऑन रिन्यू होता है। अब नेचर ऑफ प्रोजेक्ट क्या क्या चीज है, हम लोग प्रोजेक्ट को नेचर में 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं: न्यू एंड ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, नंबर 3 इज एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटी एट द सेम और डिफरेंट लोकेशन। अब न्यू फील्ड प्रोजेक्ट क्या है, मैं उसको नया तरीके से कोई भी एक आइडिया को रोज से चालू कर रहा हूँ। इसके लिए मेरे को लैंड, इंडस्ट्रीज बनानी है, फैक्ट्री बिल्डिंग बनानी है, प्लांट एंड मशीनरी बनानी है, फ्रॉम जीरो टू एंड ऑफ द लेवल, उसको हम लोग न्यू प्रोजेक्ट या ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट बोलते हैं। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट क्या हुआ कि जिसमें मेरे पास स्ट्रक्चर्स है लेकिन मेरे को मशीनरी के लिए, कैश फ्लो के लिए कैश फ्लो के लिए, रनिंग के लिए, बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, दैट वी कैन कॉल्ड एज ए ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। एक्सपेंशन, मेरी कोई इंडस्ट्री रनिंग है, उसकी मैं अलग यूनिट या मैं उसमें कोई एक्सपेंशन कर रहा हूँ, मैं मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोडक्ट कर रहा था, मैं उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट और ऐड करना चाह रहा हूँ उसी कैटेगरीज के, सेम लोकेशन में या डिफरेंट लोकेशन में, तो उसको भी हम लोग फाइनेंस करवा सकते हैं। अब इसके लिए मैंने जब डिसाइड किया कि मैं प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करवाऊंगा या मैं प्रोजेक्ट को लगाऊंगा, तो उसके लिए मैंने डिसीजंस लिए। अब डिसीजन लेने के बाद में मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। तो इरिसीवेबल इन नेचर, मतलब मैं कोई भी प्रोजेक्ट को जब मैं आगे ले लिया हूँ, आगे बढ़ चुका हूँ, उसके ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर चुका हूँ, तो अब उसके पीछे मैं जाऊंगा तो मेरे उसमें नुकसान होगा। जो प्रोजेक्ट मैं लगा रहा हूँ उसका लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, इसमें मेरे को रिटर्न कितना मिल पा रहा है, कंपिटिटिव पोजीशन, मेरे इसके कंपिटिटिव कौन कौन है आज के डेट में, और जिस दिन मेरा प्रोजेक्ट रनिंग होगा तो उस दिन में मेरा कंपिटिटिव क्या क्या है। और सेकेंडली रिस्क, मेरा प्रोजेक्ट में रिस्क क्या क्या चीज है, क्या क्या प्रोस्पेक्ट में रिस्क आ रही है। जब मैंने प्रोजेक्ट लगाने की कोशिश की, जब लगा रहा हूं तो मेरे को अब फंडिंग की जरूरत है। तो अब फंडिंग क्या क्या तरीके से मेरे को मिल सकती है, सबसे पहले इक्विटी कैपिटल, सेकंड इज टर्म लोन, थर्ड इज डिवेंचर कैपिटल, फोर्थ इज डेफर क्रेडिट। इक्विटी कैपिटल क्या है, इक्विटी कैपिटल कुछ नहीं है, मैं मेरा पैसा लोन के प्रोजेक्ट में लेके आ रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड इक्विटी कैपिटल। टर्म लोन, मैं कोई पैसा बैंक से या फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट से मैं पैसा ले रहा हूँ, तो उसके ऊपर मैं जो पैसा ले रहा हूँ दैट इज कॉल्ड टर्म लोन। डिवेंचर कैपिटल, ये और कुछ नहीं है, कंपनी डिवेंचर अपना इशू करती है। देयर इज ए टू टाइप ऑफ डिवेंचर, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, जिसमें मैं कुछ इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ और मैं राइट भी देता हूँ बहुत से टाइम में डिवेंचर होल्डर को कि मेरे प्रोजेक्ट में फाइनेंस करके और मेरे इक्विटी और वोटिंग राइट्स में मेरे साथ में रहे। डेफर क्रेडिट, व्हाट इज दिस, दिस इज ए न्यू टर्म फॉर यू ऑल। ये कुछ भी नहीं है, मेरे को पैसा मिल रहा है, मैं जिस प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट बनाऊंगा उसके ऊपर मेरे को कस्टमर से पहले, मैंने रनिंग होने से पहले मैंने कस्टमर से पहले पैसा ले लिया है फॉर रनिंग इन माई इंडस्ट्रीज, दैट इज कॉल्ड डेफर क्रेडिट। In simple word, we can say deferred credit, money received by a company that is not immediately reported as a income because it is a payment for a good or service that has not been yet delivered। कि जो चीज मेरे को कंपनी ने एडवांस दिया है काम करने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, जो मेरे को आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम मेरे को उसको गुड्स देना है। अब प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग दो तरीके से मैं प्रोजेक्ट फाइनेंस करवा सकता हूँ, रिकोर्स लोन और नॉन रिकोर्स लोन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, रिकोर्स लोन में मेरे को कोई ना कोई हाइपोथिकेशन एंड कोलेटरल सिक्योरिटीज देनी पड़ेगी, और नॉन रिकोर्स लोन जिसमें मेरे को कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ेगी। आज के डेट में हमारी गवर्नमेंट ने एमएसएमई लोन्स को बहुत सा किया है, जो सीजीटी एमएसएमई गवर्नमेंट कवर करती है। सीजीटी एमएसएमई 5 करोड़ के लोन तक आपको, इफ आपका कोई भी प्रोजेक्ट है तो गवर्नमेंट आपको कैश विदाउट सिक्योरिटी विद सीजीटी एमएमएस कवरेज आपको लोन देती है। ये गवर्नमेंट कवरेज लोन है
और रिकॉर्ड्स में फिर जाऊंगा तो इसमें मैं कोई ना कोई तरीके से मेरी बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग्स है, हाइपोथिकेशंस ऑफ स्टॉक्स एंड बुक डेब्ट्स है एंड अदर करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स ऑफ द कंपनी है जो मैं दे रहा हूँ, मेरे प्रोजेक्ट्स के दे रहा हूँ। अब जब चीज है कि मेरे को प्रोजेक्ट लगाना है तो उसके लिए मेरे को सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, आइडिया आनी पड़ेगी। आइडिया मेरे को उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा कि मैं इसके ऊपर करना पड़ेगा। तो व्हाट इज कॉल्ड दैट बिजनेस आइडिया। मैं जब तक मेरे पास आइडिया नहीं होगा तो मैं जब तक क्या काम कर सकूंगा। मेरे को पहले एक आइडिया गैदर करना पड़ेगा कि मैं इसके ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करूंगा, इस प्रोजेक्ट की इंडस्ट्रीज लगाऊंगा तो मेरे को ये बेनिफिट्स मिलेगी। जब मैंने आइडिया कर लिया तो उसके बाद में इनिशियल काम आता है कि आपका फाइनेंशियल एडवाइजर या सीए के साथ में आपको डिस्कशन करना है कि ये प्रोजेक्ट कितना वायबिलिटी है आपके लिए, ये इंडस्ट्रीज कितनी वायबिलिटीज है इस प्रोजेक्ट के लिए। तो इस चक्कर में आपको कितनी वायबिलिटीज होगी, क्या होगी, if आपको आगे जाना है नहीं जाना है, जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर या सीए रहेंगे वो आपको बता पाएंगे कि इसमें कितने प्रोजेक्ट कॉस्ट लगेगा, कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना और फ्यूचर में इसकी क्या एक्सपेक्टेशन है। आपके ही आइडिया से वो लोग आपके ही आइडिया से काम करके एडवाइस देंगे आपको। जब आपका एडवाइस प्रोजेक्ट होता है, जब एडवाइस आपकी मिल जाती है तो उसके बाद में आपका चालू होता है प्लानिंग वर्क। कोई भी काम करने से पहले मेरे को प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंस प्लानिंग, प्लानिंग मैं करूंगा तो भी मेरे को कि अब इसके आगे मेरे को क्या क्या रिपोर्ट्स करने हैं, क्या प्लानिंग से मेरे क्या क्या प्लानिंग्स करने हैं। प्लानिंग जब मेरी हो जाएगी तो मेरे को कुछ एनालिसिस करनी है। क्या क्या एनालाइज करना है, इकोनॉमिकल, कॉमर्शियल, टेक्निकल, इकोलॉजिकल एंड मार्केटिंग। इसमें कुछ टेक्निकल बंदे होते हैं, कुछ सीए होते हैं कि जो ये काम करते हैं। इकोनॉमिकल, कॉमर्शियल एंड मार्केटिंग ये फिर भी सीए कर देते हैं, लेकिन टेक्निकल एंड इकोलॉजिकल इसके एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपको करके देंगे। ये पूरी रिपोर्ट्स बनती है कि पूरी रिपोर्ट जब प्लानिंग होने के बाद में, ये पूरी एनालिसिस होने के बाद में अपने को पता लगता है कि ये प्रोजेक्ट मैं कर सकता हूँ या सेटअप के लिए मेरा रेडी है या नहीं है। अब ये सेटअप के लिए जब रेडी हो जाता है तो इसके बाद में मेरे एनालिसिस आते हैं फाइनेंस के पार्ट पे। क्या क्या चीज है, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, पेबैक पीरियड, प्रॉफिटेबिलिटी एक्सेट्रा। अब मेरे को जब मैं कोई प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ तो मेरी प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग कितनी आएगी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, मेरे को प्रोजेक्ट कितने सालों के बाद में पेबैक पीरियड करने लगेगा और मेरी प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहेगी। जब मेरे को ये सारी चीजें हो गई तो ये सारी चीजें होने के बाद में मेरे को एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है। रिपोर्ट को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कंप्रेसिव रिटर्न पार्ट, जो मेरे को एक एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है कि क्या क्या चीज है और कैसे है, क्या क्या चीज है और मेरे को क्या रेट है। इट इज ए वन टाइप ऑफ राइटर समरी, वो करनी पड़ती है। सेकेंडली मेरा जो होता है कि रिपोर्ट, मेरी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या रहेगा, मेरा कितना कॉस्टिंग लगेगा, मेरी मशीनरी की कितनी कॉस्टिंग लगेगी, मेरा एक्सपेक्टेड सेल्स एंड रनिंग ऑफ द बिजनेस, सेल्स एंड परचेज क्या रहेंगे, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहेगी, मेरा रिपेमेंट पीरियड क्या रहेगा, मेरा ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस क्या आएगा, ये सारी चीजें होगी। मैं आपको एक एग्जांपल से एक प्रोजेक्ट का बता रहा हूँ जो है कि पेपर इंडस्ट्रीज की एक प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने जैसे एक ब्रीफ लिया है कि आपको कंटेंट्स क्या क्या लगेगा, कि आपको क्या क्या चीज देनी पड़ेगी। सबसे पहले कि इसके मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का क्या ओवरव्यू है। एक इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी, कंपनी क्या करेगी, कंपनी ने कब माना है, कंपनी क्या है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक लिमिटेड है, जो भी अपनी कंपनी है उसके क्या इंट्रोडक्शन है, क्या चीज है, कंपनी कब रजिस्टर्ड हुई है, क्या काम कर रही है या नई कंपनी बनी है। उसके बाद में इसका मैनेजमेंट क्या चीज है, कौन कौन मैनेजमेंट है, और मैनेजमेंट जो भी है इसके डायरेक्टर प्रोप्राइटर उनकी क्या प्रोफाइल है। फिर थर्ड चीज आता है कि मैं किस बेसिस पे प्रोडक्ट, अब मेरा प्रोडक्ट क्या है कि जिसके ऊपर मैं काम करूंगा, ये कौन से स्कीम में आती है, मार्केट कितना पोटेंशियलिटी और सर्वे है,
अब इसके बाद में मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, तो मेरे को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में रिक्वायरमेंट मेरा कौन सा लोकेशन होगा, लैंड एंड बिल्डिंग है, पावर सप्लाई है, वाटर सप्लाई है, ये मेरे को लगता है, तो स्टोरेज है, जनरल लेआउट है, ट्रांसपोर्टेशन है, फायर फाइटिंग एंड फाइनेंशियल प्रोजेक्ट। ये जब सारी चीजें ले आई तो उतने के बाद में मेरा फाइनेंशियल का कुछ पार्ट इसमें रहेगा, कि जिसमें मैं एग्जम्पशन करूंगा कि मेरे को कितनी मेरी कैपिटल्स रहेगी और कितनी मेरे को फाइनेंसिंग मिलेगी, या मेरा को पार्टनर या जो वेंचर में है तो कितने रहेंगे। और मेरे को इसके बाद में मेरे को वर्किंग कैपिटल कितनी लगेगी। सबसे मेन पार्ट है स्वॉट एनालिसिस भी करनी है, कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटी क्या है और मेरी थ्रेटनेस क्या है इस प्रोजेक्ट लगाने में। मैं ये सारी चीजें लिख करूंगा। उसके बाद में मैं ये प्रोजेक्ट में मेरा मिशन क्या है, विजन क्या है, वैल्यू क्या है और क्वालिटी पॉलिसीज क्या रहेगी। ये सबसे बड़ा चीज पॉइंट आएगा। उसके बाद में मेरा है ह्यूमन रिसोर्सेस। मेरे को वर्क या मेरे पार्टनर, जिसको मैं स्टाफ भी बोल सकता हूँ, मेरे को पार्टनर्स भी बोल सकता हूँ, जो मेरे को कहाँ से मिलेंगे और मेरे को किस तरीके से हेल्प करेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेस। सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में ये सबसे बड़ा लगता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज। अब उसके बाद में मैं कोई भी प्रोजेक्ट लगाऊंगा तो मेरे को कुछ सोशल ऑब्लिगेशंस भी मेरी है, कि मेरा कोई क्लाइमेट खराब नहीं हो रहा है, मैं ड्रेनेज सिस्टम ठीक कर रहा हूँ, मेरे कोई केमिकल्स बाहर नहीं जा रहे हैं, उसके ऊपर मैंने क्या किया और मेरे को इससे सोशल को बेनिफिट क्या होगी। अब मैं प्रोजेक्ट का ये चीज करूंगा तो मेरे को प्रोजेक्ट कब तक मेरा ये प्रोजेक्ट रनिंग हो जाएगी, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, मैं प्रोजेक्ट को कितने स्टेज में मैं प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करूंगा, कि मेरे कितने दिन में या कितने महीने में मेरी बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर बन जाएगी, मशीनरी मेरी कब आ जाएगी, ट्रायल रन्स कब हो जाएंगे, और उसके बाद में मेरे को मैन्युफैक्चरिंग मैं कब से चालू कर पाऊंगा। उसके बाद में कंक्लूजन, कि मेरे टोटल प्रोजेक्ट का क्या कंक्लूजन होना चाहिए। और उसके बाद में मेरा रिकमेंडेशन, कि मेरे को कितना चाहिए पैसा, वो मेरे को एक रिकमेंडेशन सीट में करना है। तो ये एक पूरा समरी आपको बना के देनी पड़ेगी। जस्ट मैं फर्स्ट पेज आपको दिखा दे रहा हूँ, कि एक जब है कंपनी है जिसका है कि कहाँ पे होगी, किस तरीके से होगी, क्या प्रोडक्ट है, कितनी मेरे को कैपिटल लगेगी, कब, कितने मेरे स्टाफ लगेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी, मैनेजमेंट ऑफ प्रोफाइल्स कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कितने जन्स है, उनका प्रोडक्ट का क्या है चीज है, ये सारी चीजें आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको देनी पड़ेगी। जब आप ये रिपोर्ट कंप्लीट कर लेंगे तो आपके बाद में आ जाएगा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में आपको एनेक्सर के करके, मेरे पास अलग अलग प्रोजेक्ट के अलग अलग चीज आते हैं, कि कितने एनेक्सर्स लगेंगे, कितने प्रोजेक्ट है, मेरा प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या रहेगा पहला, मेरे एस्टिमेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी क्या रहेंगे, मेरे डिटेल्स ऑफ मिसलेनियस फिक्स एसेट्स मेरे को क्या क्या करने पड़ेंगे, मेरे प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस क्या रहेंगे, मेरी प्लांट की क्या कैपेसिटी है, रॉ मटेरियल मैं किससे परचेज करूंगा और स्टॉक कितने दिन का रहेगा मेरा। और सेकेंडली उसके बाद में मेरा फैक्ट्री वेजेस कॉस्ट क्या आ रही है, मेरा प्लांट कैपेसिटी क्या है, मैं फिक्स एसेट्स एलोकेशंस क्या कर रहा हूँ, इंटरेस्ट का क्या है, कंटीजेंटी लाइबिलिटीज क्या है, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस क्या है, मेरा डिप्रिसिएशन क्या है, स्टेटमेंट ऑफ सोइंग ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम, मैं रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे कैसे करूंगा, मेरे को मार्जिन ऑफ वर्किंग कैपिटल कितना लगनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, मेरा प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट उसके बाद में आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा, कैश फ्लो आएगा। उसके बाद में सबसे बड़ा पॉइंट है कि मेरा ब्रेक इवन एनालिसिस कब होगा, ब्रेक इवन पॉइंट मेरा कब से आएगा, मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कब मेरे को मिलेगा। और इफ मैं टर्म लोन जाता हूं तो इसमें मेरे को डीएसआर कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट एक चीज है, मेरा टर्म लोन किस तरीके से रिपेमेंट होगा। मैंने 7 साल के लिए मेरे को बैंक लोन दिया है, तो मेरा इसमें मोनोटोरियम पीरियड कितना रहेगा, मेरा ईएमआई बेसिस पे है या मेरा इक्वली ईएमआई डिवाइडेड है, लोन डिवाइडेड है प्लस इंटरेस्ट है, मेरा ईएमआई, मेरा प्रोजेक्ट मेरे को किस तरीके से फाइनेंस पेमेंट करना है, टर्म लोन ईएमआई मैं किस तरीके से पेमेंट करूंगा। ये शेड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स है, कि मोनोटोरियम पीरियड कितना है, कि मेरे को कितने दिन लगेंगे, कि मैं जब बैंक से लोन ले लूंगा तो मेरे को कितने दिन के अंदर के बाद में मेरे को पेमेंट करना है।
इस मोनोटोनियम पीरियड में मेरे को इंटरेस्ट पेमेंट करना है या नहीं करना है, मेरे को इंटरेस्ट मोनोटोनियम पीरियड में भी पेमेंट करना है या नहीं करना है, ये मेरे हर चीज कैलकुलेशंस में आएगी। मैं जैसे एक एनेक्सर आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें ब्रीफ किया हुआ है कि मेरे को क्या क्या कॉस्टिंग्स मेरी लगेगी और कैसे कैसे कॉस्टिंग्स लगेगी। लैंड एंड बिल्डिंग में मेरा क्या रहेगा, इफ मैं खुद परचेज कर रहा हूँ तो परचेज में कितनी वैल्यू होगी, इफ रेंटेड है तो क्या चीज है मेरे को, इफ रेंटेड है तो मेरे को कितनी सिक्योरिटी डिपॉजिट्स देनी पड़ेगी, मेरे प्लांट एंड मशीनरी की कितनी कॉस्टिंग आएगी, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलमेंट का कितना कॉस्टिंग आएगा, मिसलेनियस फिक्स एसेट्स का कितना कॉस्ट आएगा, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस मेरे कितने कॉस्ट आएंगे, और मेरे को मार्जिन ऑफ वर्किंग कैपिटल कितनी लगेगी। ये मैं एक बार डिसाइड कर लिया कि मेरे प्रोजेक्ट में इतना रुपया मेरा लगेगा, तो इसके बाद में आता है कि मैं खुद कितना इन्वेस्ट करूंगा और मेरे को बैंक से कितना लोन मिल सकता है। जनरली ये रेशियो अलग अलग बैंक में अलग अलग डिफाइंड रहता है। जनरली 20% प्रमोटर के कंट्रीब्यूशन रहते हैं जो बैंक जनरली मांगती है, और 80% फाइनेंस करती है, लेकिन बहुत से केस में ये वेरी करते हैं, 25% भी होता है, 30% भी होता है और 50% भी होता है। डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट, डिपेंडिंग ऑन द रिस्क फैक्टर्स, बैंक अपना डिसाइड करती है, अपने पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे इस प्रोजेक्ट में मैंने किया है कि मेरा 30% शेयर मैं इन्वेस्ट करूंगा और 70% मेरे को बैंक फाइनेंस करेगी। अब इसको मैंने किस तरीके से मेरे को काम करना है, कैसे काम करना है, अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें होती रहेगी। जब मेरा एक बार ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड रेशियो एनालिसिस मेरी कंप्लीट हो जाती है, तब मैं आगे प्लानिंग कर सकता हूँ कि अब मेरे को कौन से बैंक को या कौन से इंस्टीट्यूट को अप्रोच करना है, कौन मेरे को फाइनेंस करेगी, कौन। हर बैंक की पॉलिसीज, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की पॉलिसीज अलग अलग रहती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग रहते हैं। और बहुत से बैंक प्रायोरिटी सेक्टर में अलग देता है, ग्रीन फील्ड में अलग देता है, लेडीज में अलग देता है, नारी शक्ति लोन बोलते हैं जिसको। अब मेरे को इसमें क्या चीज बेनिफिट्स मिल रही है और कैसे बेनिफिट्स मिल रही है, मैं उस, मेरा प्रोजेक्ट कौन आगे लेके जाएगा, मैं उस चीज को लेके मैं आगे काम करूंगा कि कौन सा बैंक या कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मेरे को कर रखेगा। जब मेरे को ये हो गया कि मेरे को डील हो गया कि मेरे को बैंक से, कौन से बैंक से लेना है, कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लेना है, तो मेरे को कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या है, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैंने डिटेल्स बनाया था वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरे को देने पड़ते हैं। सेकेंडली उसके बाद में आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि मेरे को सिक्योरिटी क्या देनी है, कितनी देनी है, और बैंक कितना चाह रहा है, सिक्योरिटी कितनी चाह रही है और कितना देना पड़ रहा है। और उसके बाद में एक चेकलिस्ट होती है बैंक की या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की कि मेरे को और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं। जब बैंक एंड क्लाइंट जब एक पॉइंट में आ जाते हैं, तब मैं प्रोजेक्ट को वो आगे लेके जाते हैं। बैंक को ये रिपोर्ट देने के बाद में बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपका रिपोर्ट पढ़ेगी, उनको इंटरेस्ट होगा या उनको लगेगा कि नहीं वो फाइनेंस के लिए आगे जा सकते हैं, गो एड कर सकते हैं आपके पेपर से, तो उसके बाद में वो ग्रीन सिग्नल देने के बाद में फिर डॉक्यूमेंटेशन आपको बैंक को क्या क्या सबमिट करनी पड़ेगी। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या, केवाईसी सबमिट करनी पड़ेगी। और प्रोमोटर्स एंड गारंटर्स, केवाईसी में क्या क्या आएंगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट एंड डिफरेंट, और भी कुछ होंगे, कंपनी होगी तो उसके ट्रेड लाइसेंस, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट्स, अदर फॉर्म्स ऑफ आरओसीज, गारंटर्स के भी सेम चीज लगेंगे। ये होने के बाद में इफ प्रमोटर्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड नेटवर्क सर्टिफिकेट्स लगेगा, एंड गारंटर का भी लगेगा। और इसके बाद में ये कंपनी पुरानी है, रीफाइनेंसिंग कर रहे हैं या एक्सपेंशन के लिए कर रहे हैं, तो कंपनी की पुरानी ऑडिटेड बैलेंस शीट लगेगी, प्रोजेक्ट्स लगेंगे और एस्टिमेटेड कॉपी लगेगी। अब कंपनी नहीं है तो मेरे को प्रोविजनल एंड एस्टिमेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देने पड़ेंगे, ये मेरा कब से बिजनेस चालू होगा और मेरे लास्ट जितने साल के लिए मैं टर्म लोन्स ले रहा हूँ
उतने साल के लिए मेरे को ये प्रोजेक्शन प्रोविजनल एंड एस्टिमेटेड मेरे को बना के देनी पड़ेगी, कि ये चीज आपको बना के देनी पड़ेगी कि इतने साल के लिए मेरे ये सेल्स होंगे, या मैं ये बिजनेस है इतना इतना मैं सेल्स इस ईयर में टारगेट करूंगा, और दिस विल बी माय प्रॉफिटेबिलिटी, एंड फ्रॉम दिस प्रॉफिटेबिलिटी आई एम एबल टू पे द बैंक लोन। जब मैं ये चीज दे दूंगा तो फिर मेरे को डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी, if मैं सिक्योरिटी में जाता हूँ, कोलेटरल में जाता हूँ, तो मेरे को मेरे सिक्योरिटी के पेपर्स मेरे को देने पड़ेंगे। सिक्योरिटी के पेपर्स जो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, या मैं और कोई सिक्योरिटी दे रहा हूँ, कोलेटरल सिक्योरिटी दे रहा हूँ, अदर देन मैं फैक्ट्री बिल्डिंग के अलावा कोई प्रमोटर अपनी प्रॉपर्टीज दे रहे हैं, या और कोई सिक्योरिटी ऑफर कर रहे हैं, तो वो सारे पेपर्स देने पड़ेंगे। तो उसमें बैंक अपना रिसर्च करवाएगी, वी कैन कॉल एट द सर्च रिपोर्ट एंड वैल्यूएशन, जो बैंक अपना करेगी, कि बैंक का एक रेशियो रहता है कि इतना परसेंट हम लोग कवरेज रहेंगे। बहुत से में होता है 50-50 रहेगा, 50 कवरेज रहेंगे, 70 कवरेज रहेंगे, या 30 कवरेज रहेंगे, वो डिपेंडेंट ऑन द प्रोजेक्ट में कवरेज रहता है, या जीरो कवरेज रहेंगे। अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने 5 करोड़ तक बोला है कि एमएसएमई लोन लेके आप ले सकते हैं, सीजीटी एमएसएमई कवरेज। आपको इसमें कुछ भी नहीं है, आपको सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें आपको एक है कि सीजीटी एमएसएमई फीस आपको बैंक को रीपे करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को रीपे करनी पड़ेगी ऑन योर लोन अमाउंट, विच विल बी डिडक्टेड ऑन द डिसबर्स ऑन द डिसबर्समेंट ऑफ आफ्टर सेंशनिंग एंड होते ही आपका वो लोन का अमाउंट आपका काट लिया जाएगा। सीजीटी एमएसएमई फीस वो गवर्नमेंट आपका काट लेगी। वो 5 करोड़ तक आप अभी ये फैसिलिटी ले सकते हैं। गवर्नमेंट बोलती है मेड इन इंडिया। 2 दिन पहले भी हमारे प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया था कि मेड इन इंडिया, और इस ओकेजन में, फेस्टिवल ओकेजन में इंडियन गुड्स परचेज करें। तो हमारे गवर्नमेंट बोल रही है कि आप फाइनेंस करवाइए, इंडस्ट्री सेटअप कीजिए, और गुड्स को परचेज इंडिया का कीजिए, और इंडियन गुड्स बनाइए। जो हमारे अभी टेरिफ वार चल रहे हैं यूएस के साथ में और चल रहे हैं, तो हमको दूसरी कंट्री में डिपेंड नहीं रहना है। हम लोग कोई भी दूसरी कंट्री पे डिपेंड नहीं रहेंगे, हम लोग अपना बनाएंगे और अपना कंजम्पशन करेंगे। तो इससे करने के लिए गवर्नमेंट फाइनेंस करवा रही है और भी करवा रही है, तो इसमें अपने फायदा ले सकते हैं गवर्नमेंट की स्कीम का भी, विदाउट प्रोवाइडिंग द कोलेटरल सिक्योरिटीज। जब मैं बैंक रेडी हो गई, मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, तो बैंक का कुछ स्टेप्स होते हैं कि बैंक अपना स्टेप्स करती है। बैंक अपनी कुछ रेटिंग्स करती है, सिविल रिपोर्ट्स निकालती है। सिविल रिपोर्ट इंडिविजुअल्स प्रमोटर्स के निकलते हैं, गारंटर्स के निकलते हैं, और कंपनी पुरानी है या नहीं है तो कंपनी के भी निकलते हैं। सिविल रिपोर्ट के ऊपर में ही डिपेंड्स करता है कि आपके लोन्स वो लोग देंगे या नहीं देंगे, या आपका क्या क्या लोन्स की हिस्ट्री चल रही है। उसके बाद में सिविल रिपोर्ट निकलने के बाद में फिर डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है, और उसके क्या टर्म एंड कंडीशन है बैंक के या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के जिसके आप ले रहे हैं, तो आपको उसके अंदर जाना पड़ेगा। इफ सारी चीज कंप्लाइंट करते हैं तो सेंशन लेटर आपको मिल जाता है। अब उसके बाद में आता है डॉक्यूमेंट ऑफ सिक्योरिटी। अब आपने जो चीज दिए हैं, सेंसर लेटर मिलने के बाद में आपको जो सिक्योरिटी आपने ऑफर किया है उसके ओरिजिनल पेपर्स एंड ऑल अदर डॉक्यूमेंट सिक्योरिटीज वो आपको सबमिट करने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना पड़ता है। ये सारी चीजें सबमिट करने के बाद में ही बैंक आपका फंड डिसबर्स करेगी। और डिसबर्स भी करेगी तब करेगी, डिसबर्स तब करेगी, और इसमें आपकी मार्जिन मनी भी आनी पड़ेगी, जो एज पर बैंक के टर्म एंड कंडीशन के ऊपर रहेगी। अब ये चीज रहा कि जब मेरा लोन सैंक्शन हो गया और हो गया, अब इसका आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट कौन बना के दे सकता है, कैसे आप बनवा सकते हो, तो इसका रोल सबसे बड़ा चार्टेड अकाउंटेंट, क्योंकि वो फाइनेंस में काम करते हैं और फाइनेंशियल एडवाइजर है। तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको इंडिपेंडेंट अप्रेजल ऑफ द प्रोजेक्ट चार्टेड अकाउंटेंट से या फाइनेंशियल एडवाइजर से करवाना पड़ेगा प्रोजेक्ट को, कि ये प्रोजेक्ट वायबल है या नहीं है। प्रोजेक्ट वायबल है तो आप आगे जा सकते हैं। इसके लिए फिर क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनानी पड़ेगी। सर्टिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आपके बहुत से जगह बैंक
सीए सर्टिफाई मांगती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स में, नेटवर्क सर्टिफिकेट्स हो गए, ऑडिटेड बैलेंस शीट हो गई, बहुत से प्रोजेक्ट प्रोविजनल्स में सर्टिफाई मांगती है, बहुत से जगह मांगती है, या टर्नओवर सर्टिफिकेट, जीएसटी सर्टिफिकेट्स, if रनिंग इंडस्ट्रीज है तो जीएसटी टर्नओवर सर्टिफिकेट, बहुत से जगह में बैंक आपसे सर्टिफिकेशन मांगती है। और नेगोशिएशन पावर, आपके मिडलमैन रहता है जो नेगोशिएशन, वो दोनों साइड से, बैंक से भी और आपसे भी, दोनों तरीके से नेगोशिएशन कर सकते हैं। अब बैंक ने बोला, सपोज कीजिए एग्जांपल, बैंक ने बोला कि मैं 5 करोड़ का प्रोजेक्ट करूंगा, इसमें 80% सिक्योरिटीज कोलेटरल लूंगा। आप बोल रहे हैं कि नहीं, 40% देंगे या 50% देंगे, तो एक नेगोशिएशन होके एक पॉइंट में आके, हमें नेगोशिएशन करके एक पॉइंट में हमने लास्ट में रेडी हुआ कि नहीं, कि हम 60% सिक्योरिटी में रहेंगे, तो वो नेगोशिएशन करना पड़ेगा अपने को। नेगोशिएशन करने के बाद में ही सारा काम हो सकता है। अब जब मैंने प्रोजेक्ट लगा रहा हूं या कर रहा हूं तो इसमें कुछ रिस्क आती है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस रिस्क। क्या चीज है? द एक्सपोजर ऑफ ए कंपनी ऑफ और ऑर्गेनाइजेशन हैज टू बी फैक्टर दैट कुड बी ए लोअर इट्स प्रॉफिट और लीड टू बी फेलियर। अब मैं रिस्क को एसोसिएट कैसे कर सकता हूँ? प्रोजेक्ट जब चालू होता है और एंड तक, रनिंग तक मेरे रिस्क रहते हैं। सबसे पहला रिस्क, कंस्ट्रक्शन एंड कंप्लीशन रिस्क। ये क्या रिस्क है? मैं कोई फैक्ट्री लगा रहा हूँ, तो मेरी फैक्ट्री, मैंने एक टाइम पीरियड लिया कि 1 साल में मेरी फैक्ट्री ट्रायल रन के बाद में रनिंग हो जाएगी, तो मेरा वो कंस्ट्रक्शन होना और मेरे उसमें कंप्लीट होना, वो विद इन ए टाइम पीरियड के अंदर हो जानी चाहिए। और इफ एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है तो क्यों लग रहा है, और मेरा उसमें क्या अफेक्ट, मेरे क्या नुकसान होगा इफ मेरा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। मैंने 12 मंथ का लिया, मेरा 14 मंथ्स लग रहा है, तो मेरा इसमें क्या अफेक्ट पड़ेगी, मेरे मेरे प्रोजेक्ट में क्या अफेक्ट पड़ेगी, क्योंकि मैंने मोनोटोरियम पीरियड 12 महीना का लिया था, तो मेरा प्रिंसिपल मेरे को रीपेमेंट करना पड़ेगा। if मेरी इनकम ही चालू नहीं होगी तो मैं रिपेमेंट कैसे करूंगा? तो इसको मेरे को बहुत से चीजें हैं, इसको मेरे को कंप्लीट आप लोग को देखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन एंड कंप्लीशन, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना और रनिंग पोजीशन में लाना, ये सबसे बड़ा। ऑपरेशनल, जब मेरा प्रोजेक्ट ट्रायल रन हो गया तो उसके बाद में मेरी ऑपरेशनल रिस्क क्या क्या आएगी, मेरे को लेबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मेरी मशीनरी ब्रेक डाउन हो गई तो इंजीनियर कितने देर में मेरी मशीनरी को रीस्ट्रक्चर कर पाएंगे, रिकंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, ब्रेकडाउन को कंप्लीट कर पाएंगे। मेरी इलेक्ट्रिसिटी का क्या रहेगा, मेरी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो मेरा पावर बैकअप क्या है, मेरे और कोई थ्रेट एंड कोई चीज नहीं है, मेरे नेचुरल थ्रेट्स क्या क्या है। और उसके बाद में मार्केट रिस्क, मैं आज प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ, मेरे 4 साल के बाद में मार्केट में क्या रिस्क रहेंगे, मेरे को रिस्क, उस मार्केट को रिस्क में मेरे प्रोजेक्ट, मेरा प्रोडक्ट मार्केट तक जाते जाते कितना टाइम लेगा, मेरे मार्केट में किस तरीके से अवेलेबल रहेंगे, मार्केट में मैं किस तरीके से मॉनिटरिंग करूंगा, मेरे प्रोडक्ट की क्या क्या कम्पिटिटिव है, मैं मार्केट में किस तरीके से स्ट्रेंथ ले सकता हूँ, मैं मार्केट को किस तरीके से कैप्चर कर सकता हूँ, ये मार्केट रिस्क रहेगी। फिर रिस्क ड्यू टू चेंज इन लो, अचानक गवर्नमेंट ने कोई लॉ चेंज कर दिया, मैं इंडस्ट्री आज कुछ लगा रहा था लेकिन सडनली गवर्नमेंट ने या ने कोई लॉ चेंज कर दिया, या कोई इंस्टीट्यूट ने लॉ चेंज कर दिया, वर्किंग में चेंज हो गई, तो उससे मेरे इंडस्ट्रीज को क्या अफेक्ट पड़ेगी और उसको मैं बैकअप कैसे कर सकता हूँ। पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी रिस्क, ये ये अभी अपना सबसे कॉमन एग्जांपल रिसेंटली आप देख सकते हैं, पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी। टेरिफ वार चल रहा है कि अचानक मैं यूएसए एक्सपोर्ट करता था, अब उसमें टैरिफ लगा दिया गया है, तो मेरा उसमें मेरे, इफ मैं यूएसए एक्सपोर्ट नहीं करूंगा तो मेरे दूसरी जगह एक्सपोर्ट के मेरे क्या है, मैं एक ही चीज को, एक ही प्लान लेके चलूंगा, अल्टरनेटिव मेरे पास प्लान नहीं है, तो मेरे वो डिफिकल्टीज होगी। तो पॉलिटिकल से ना, इन्वायरमेंट रिस्क, मेरे इससे क्या इन्वायरमेंट रिस्क आ रहे हैं और हो रहे हैं, कोई मेरे को इन्वायरमेंट रिस्क नहीं है। इसका एग्जांपल एक दे रहा हूँ कि एक रियल इस्टेट कंपनी थी, मैं नाम नहीं बताऊंगा, पूना में थी, रियल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कर रही थी, इन्वायरमेंट को उसने अफेक्ट किया था, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने उसको पेनल्टी दी थी, और आज तक वो पेनल्टी नहीं दिया, तो वो करोड़ों के रुपए के बैंक फाइनेंस हो रखे और चीज हो रखी है, लेकिन वो आज भी वो प्रोजेक्ट पेंडिंग है।
तो मेरे इन्वायरमेंट में क्या क्या रिस्क है। if मेरे कोई फॉरेस्ट आइटम्स है, फॉरेस्ट रिस्क है, या और कोई चीज रिस्क है, मेरे फॉरेस्ट से कोई चीज आ रही है, गुड्स आ रहे हैं और आ रहे हैं, तो उस पर मैं कितना डिपेंडेंट हूँ, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है। और सबसे बड़ा इंटरेस्ट रेट रिस्क, क्योंकि आज के डेट में इंटरेस्ट रेट रिस्क सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि ये आज के डेट में गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर होता है। ईबीएलआर प्लस समथिंग बैंक देती है, फिक्स नहीं रहती है, तो ये एवरी 3 मंथ में आरबीआई पॉलिसी के ऊपर में आपके ये इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं और कम कम होते हैं एज पर आरबीआई पॉलिसी। क्योंकि अभी आपको जो भी बैंक लोन सैंक्शन कर रही है वो बोल रही है कि ईबीएलआर प्लस समथिंग, या एट द रेट ऑफ ईबीएलआर दे रही है। तो ईबीएलआर जो है वो आरबीआई की पॉलिसी पे डिपेंड हो रही है, मार्केट की पॉलिसी पे आरबीआई डिसाइड कर रही है, तो उसके ऊपर हम कर रहे हैं। तो इसके ऊपर में एक बहुत सा बड़ा है कि मेरा इंटरेस्ट अचानक ईबीएलआर बढ़ गया तो मेरे प्रोजेक्ट, मेरे कॉस्टिंग में क्या अफेक्ट आएगा। मेरा ये नहीं हो कि अचानक मेरे इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो मेरा प्रोडक्ट, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी लॉस में कन्वर्ट हो गई। तो इस चीज को मेरे को कंपेयर करना है। अब लास्ट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में अपनी रेटिंग एजेंसीज है। क्या क्या एजेंसीज है? क्राइसिल एंड केयर है, बैंक अपनी इंटरनल रेटिंग करवाती है, बैंक अपनी खुद करती है, और कुछ एक्सटर्नल एजेंसी भी उनके पास है, क्राइसिल एंड केयर। वो बैंक को अपने उनसे करवाते हैं। आपके प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कितने रुपए की लोन के ऊपर है। ये एवरी फाइनेंस लोन के ऊपर नहीं है, छोटे लोन के ऊपर में ये केयर और क्राइसिल नहीं करवाती है, बड़े बड़े लोन के ऊपर में, प्रोजेक्ट के ऊपर में ये रेटिंग बैंक बाहर से करवाती है। इकोनॉमिक वाइबिलिटी क्या है मेरा, इकोनॉमिक में मेरा क्या चीज, इसमें क्या अफेक्ट आएगा, क्या नहीं आएगा, मेरे को इकोनॉमिक में क्या रिटर्न मिलेंगे नहीं मिलेंगे। और थर्ड चीज है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। मेरे को प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या रिस्क आएगी, क्या क्या रिस्क मेरे को बियर करने पड़ेंगे, और मैं उससे कितना कैपेसिटी हूँ आपकी प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन रिस्क को कर सकते हैं। फिर मेरा प्रोजेक्ट लग गया तो उसके बाद में मेरे को जब प्रोजेक्ट चालू कर रहा हूँ तो कमेंसिंग रिस्क मेरे क्या क्या रहेगी। और लास्ट सबसे बड़ा रिस्क है कैश फ्लो एडुकेसी। मेरा प्रोजेक्ट लग गया, मेरा प्रोजेक्ट रनिंग हो गया, तो मेरे को उसमें मार्जिन मनी, कैश कैपिटल चाहिएगा फॉर द परचेजिंग ऑफ गुड्स, रोटेशन ऑफ द मार्केट के लिए। तो मेरे को कैश फ्लो एडुकेशन, मेरा कैश फ्लो के कारण मेरी इंडस्ट्री बंद नहीं हो जाए। if मैं टाइमली कैश फ्लो नहीं रहेगा, मैं गुड्स परचेज नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं लेबर को पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरी इसमें इंडस्ट्रीज का मैं प्रॉपरली नहीं दे पा रहा हूँ। तो इसमें मेरा एक चीज रहेगा कि मेरा कैश फ्लो ये प्रॉपर नहीं रहता है, तो मेरे टोटल बजट, या मैं गुड्स प्रोडक्ट नहीं कर पा, टाइमली नहीं कर पाऊंगा, फिर लेबर को मैं टाइमली पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं क्रेडिटर को पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे प्रोजेक्ट में इम्पेक्ट कितना आएगा, क्या चीज आएगा। ये इसके साथ में थैंक यू। इसमें कोई भी क्वेश्चन कोई भी तरीके का है तो यू आर ओपन सेशन विथ दैट, यू कैन आस्क मी। घनश्याम जी, बोलिए सर। ये जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग है, हाँ, मैं ऑडियंस की तरफ से ही अपने डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि टॉपिक ये नहीं सर, गोल्डन आप ओपन है, चर्चा आप डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कस बहुत कर सी रहे चीज थे, आपसे लर्निंग गोल्डन को चर्चा। मिलेगी। नाम का नाम ही है गोल्डन चर्चा सर, सो हाँ, चर्चा गोल्डन इज, चर्चा। वी ये कैन तो डिस्कस आपने एनीथिंग। पूरा डेलिब्रेशन दिया बहुत अच्छा से, कि क्या क्या है, कैसे कैसे कोई भी प्रोजेक्ट अपने रेडी करते हैं, फाइनेंस करवाते हैं बैंक से, कैसे कैसे फाइनेंस करवाएंगे, सारा प्रोसीड्यूर आपने समझा दिया। बट आई थिंक कि ये जो प्रोजेक्ट कोई भी फाइनेंस होगा, तो इसके कई फाइनेंस के कई पार्ट हो सकते हैं, कि नॉट ओनली थ्रू द बैंक, वी कैन गो थ्रू द शेयर सर कैपिटल और डिवेंचर्स और इक्विट प्राइवेट सर इसमें फाइनेंसिंग। चार तरीके का फाइनेंसिंग होता है सर। इक्विटी होता है हाँ जो हाँ हाँ। प्रमोटर खुद लेके आते हैं। सेकेंडली मैं बैंक फाइनेंसिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बोल रहा हूँ। थर्ड मेरा हम्म। डिवेंचर फाइनेंसिंग होता है। फोर्थ मेरा डेफर्ड क्रेडिट होता है। ये चार यस तरीके की यस। फाइनेंसिंग मेरे होते हैं जनरली। हाँ। चार तरीके का प्रोजेक्ट में जनरली अपने ये चीज ले सकते हैं। तो ये चार तरीके का प्रोजेक्ट फाइनेंस अपने कर
कर सकते हैं। तो इसमें आपका रेशियो क्या है, आपका प्रोजेक्ट किस तरीके से है, क्या चैनल में है, आप उस तरीके से कर सकते हैं। यस 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 यस। इसमें मेरे और एक चीज है, जैसे प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग अपने है तो अपने रोल ऑफ द सीए, रोल ऑफ ए सीए, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में कि कोई भी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का प्रोजेक्ट को रेडी करने से लेकर के फाइनेंस करवाने तक और उसके बाद प्रोजेक्ट जो चालू होगा तब तक के लिए सीए का रोल बहुत बड़ा है और इसमें सर बहुत सारी सर अपॉर्चुनिटीज है। आपका बात एकदम सही है, सर आपकी बात एकदम सही है कि मैंने बताया सिर्फ प्लानिंग क्लाइंट करता है। यस यस, आपने इसको प्लानिंग में बहुत बढ़िया से डेलिब्रेशन किया कि प्रोजेक्ट कैसे रेडी करना है और उसको कैसे फाइनेंस करवाना है। बट प्लानिंग करने के बाद में टोटल फॉर काम आवर सीए का फ्रेंड्स, या फाइनेंशियल एडवाइजर का आ जाता है। यस 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 यस, फॉर द फ्रेंड्स एंड आवर कलीग्स, कि इसमें जो है अपने लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है जिसको अपने हिंदी में बोले कि भुना सकते हैं, कि गाइडेंस क्लाइंट को देना है। और जैसे आपने बीच में बताया था कि मीडिएटर, तो मीडिएटर कौन होगा, तो एक सीए से बढ़िया मीडिएटर कोई हो नहीं सकता है फॉर द फाइनेंसिंग। क्यों अमित जी? राइट सर, टोटली राइट। सर कि इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि अभी हमारे हाँ 2 दिन सर। पहले ही मैं प्रधानमंत्री का ट्वीट देख रहा था। आफ्टर हम्म। ये अपने टैरिफ यूएस में लगी थी, तो इसमें एक चीज देखा गया था कि मेक इन इंडिया, ये हमारा यस। स्लोगन प्रधानमंत्री जो स्टार्टिंग से बोल रहे थे, और इसके ऊपर 2 दिन पहले ट्वीट में बहुत ज्यादा इम्फेसाइज किया गया है। हाँ हाँ हाँ, और एक एमएसएमई लोन्स जो मैं बार बार कवर कर रहा हूँ, बार बार 5 आप बोल रहे करोड़ थे। तक आपको सिक्योरिटी फ्री, यस आपको बैंकिंग फाइनेंस की अदर इंस्टीट्यूट नहीं दे रही है, लेकिन बैंकिंग इसके ऊपर गवर्नमेंट आपको दे रही है। तो इसके ऊपर आपके पास में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज है। If कोई इंडस्ट्रीज या कोई अच्छा आइडिया है अपने क्लाइंट के पास में, तो अपने इसको आगे प्रोजेक्ट में इंडस्ट्रीज में अपने कवर अप कर सकते हैं। यस सर, इसको लेकिन एग्जीक्यूट अपने सीए ही करवा सकते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन के पास उतने सारे आइडिया होते नहीं है। तो इसमें मैं वही कह रहा था कि अपॉर्चुनिटी सीए के पास इस प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए बहुत सारी है। सर ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज है बहुत अच्छा अपकमिंग सीए के अपॉर्चुनिटी है, लिए बहुत है, अच्छी लास्ट अपॉर्चुनिटी है प्रोजेक्ट कमिंग फॉर फाइनेंसिंग 5 to 10 years। यस। सर व्हाट आई बिलीव इज कि करेंटली एज अ सीए आल्सो हम लोग को ना थोड़ा सा और इन रिस्पेक्ट ऑफ सीजीटीएमएस स्कीम या वेरियस इंसेंटिव स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट वी शुड एजुकेट आवरसेल्फ एज वेल, बिकॉज बहुत सारे सेक्टर वाइज, स्टेट वाइज, सेंटर वाइज स्कीम्स है जो कि बहुत इन डेप्थ में है, छोटे छोटे गांव के लिए है, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट के लिए है। इफ वी कैन अपडेट आवरसेल्फ, so that will be a यस great incentive for the chartered accountant as a professional, as well as for the MSME or the corporate as well. Because अभी क्या हो रहा है सर कि कॉर्पोरेट्स को या एमएसएमई को पता ही नहीं है कि वो जिस सेक्टर में है उसमें कोई उनको इंसेंटिव भी दे रहा है। नॉर्मल प्रोजेक्ट यस फाइनेंसिंग फ्री कि अभी बहुत जन उसमें हैं, चाहे चार्टेड हो चाहे नॉन चार्टेड हो। बट जो अनटैप थोड़ा मुझे लगता है दैट इज द अवेयरनेस ऑफ द वेरियस गवर्नमेंट स्कीम। तो अगर वहां पे थोड़ा सा अपने टैप करें मार्केट, वहां पे थोड़ा और अपने आप को एजुकेट करें और फिर वेरियस सेक्टर को एजुकेट करें, सो अगेन दैट इज वेरी रेमुनेटिव, बिकॉज वन ऑफ 2 or 3 फ्रेंड ऑफ माइंड डूइंग इट एंड दे आर डूइंग ट्रेमेंडस, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी दे आर डूइंग। तो आई गेस एग्री सर। कि अमित जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, इसमें बहुत सी सब्सिडीज है, नई राइट इंडस्ट्रीज को बहुत सी सब्सिडीज है, और टैक्स हॉलीडे पीरियड भी गवर्नमेंट ने दिया है। इफ आप करेक्ट क्लाइंट को उस तरीके से आप एडुकेट करें, सब्सिडीज दिलाएं क्लाइंट को, कि जैसे बहुत से टर्म लोन्स में मैंने अभी एक प्रोजेक्ट किया था पेपर इंडस्ट्रीज का, मैं रिसेंटली शेयर कर रहा हूँ। उसके टर्म लोन की 50% इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे कर रही है, राइट प्लस इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट पे कर रही है। राइट। सो तो दैट इज यही मैं बोल रहा हूँ कि आपने जो एक्सपर्टीज ली है अपने वेरियस फंडिंग, वेरियस सेक्टर, तो वही थोड़ा सा एक्सपर्टीज बाकी फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट और अपने जो ऑडियंस है आज, जो अपने पार्टिसिपेंट है उनके लिए एंड डाउन द लाइन, तो वी कैन कम अप विद द वेरियस आर्टिकल एज वेल जहाँ पे थोड़ा एजुकेशन इम्पार्टिंग हो। बिकॉज मुझे लगता है ये थोड़ा सा अपने फेटर्निटी में गैप है इन रिस्पेक्ट ऑफ incentives and subsidiary available across इंडस्ट्री एज वेल एज द स्टेट, बिकॉज स्टेट स्पेसिफिक भी बहुत सारे अपने सब्सिडी और इंसेंटिव है सर। यस
So that can be done. So Ghanshyamji, thank you so much for such a wonderful session and the presentation, and that was very interactive and very, I will say, कि practical exposure based था कि how to guide a MSME or the corporate or the finance seeker project financing का जो स्कीम है वो बनाने में अपने को क्या क्या ध्यान रखना है, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, हाउ टू डील विद द बैंक्स एंड एनबीएफसी, and how we can grab it as an opportunity as a chartered accountant, and how we can advise the client and vice versa. So it was all in all a complete package of project financing, and how we can make business out of it as a chartered accountant, how we can explore the new opportunities. So thank you so much, sir, for enlightening us with your given expertise and in-depth knowledge of the subject matter. So Thank you, Amit ji. I again thank you, Prakash ji, as well for accepting Thank you, us sir. as a special addressee, and obviously the speaker of the day, Ghanshyam ji, who has just explaining taught us the subject matter and enlightened us with so much thing. So thank you, both of you. Thank you on behalf of EIRC, all the participant and the host Amit Agarwal. We'll meet again on the next session of Golden Chacha with another speaker, with another day, same time, 5 to 6. Thank you so much to both of you. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you.